Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is day 4 of this playlist OA problem set, ठीक है, we are going to see a new problem that is maximum with RAM, ठीक है. So you can say that this is a standard problem, but how are we going to do with less complexity, ठीक है, and using stacked data structure, we will see in this video, ठीक है. तो I have given you a hint again that this problem is going to get solved by using stacked data structure. But before starting this video, let's just see what is Newton School. So basically Newton School is an e-learning platform which have different programs especially designed for you. Their first program is pay after placement program. Okay, so under which what they do is they will teach you for 6 months. They will make you a full stack developer by teaching you for 6 months, and not only this, they will also get you placed in these different companies like ThoughtWorks, Google, Zomato, Xiaomi, Byju's, and Academy. So they have tie up with. Okay, so they will make you a full stack developer in 6 months and then they will get you placed. Most amazing thing about this program, that is pay after placement program, is you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies, and for minimum 5 lakh of CTC. Okay, so if you want to enroll for this program, you can just come to newtonschool.co and you can see here that there is a banner application for full stack development course. October batch is open. You can apply now for now. Okay, second thing they have for you is Launchpad initiative, so under which there are different courses for you and all the courses are free, and you can do quizzes here. You can also get certificate after completion of any course. Okay, so you can just explore all the courses by explore all our free courses and just log in or sign up and start learning for free. Okay, so if you have any doubt in these two programs of Newton School, you can just ask me in comment section. And if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go to YouTube and subscribe this YouTube channel, where we are updating these playlists regularly for you, like OA problem set, Git tutorial, JavaScript, dynamic programming, and C++, DSA. So these playlists are regularly getting updated, and if you have any doubt, you will also get support in comment section. Like, just ask your doubt, and as soon as we will see it, we will reply you or explain you again in brief. So let's just begin today's video, that is maximum with RAM. Okay, firstly I will explain you the problem using problem statement, and then we will see the question. So a ramp is an integer array. Num is a pair ij for which I is less than j and nums of I is less than equals to nums of j. ठीक है, so I hope यहाँ से समझ में आ गया होगा. And the width of such ramp is j minus I. ठीक है, तो exactly है क्या, given in array of nums return the maximum width of the ramp in nums. Okay, so exactly है क्या, हमें एक array given होगी और हमें maximum width of ramp बतानी है. अब रैम्प क्या होती है ये देखते हैं. सपोज कोई भी एक पेयर है i एंड j, उसमें इफ i इज लेस देन j है, ठीक है, नम ऑफ i इज लेस देन इक्वल्स टू नम ऑफ j है, तो जो j माइनस i है वो होगी तुम्हारी करंट रैम्प की विड्थ. ठीक है, और तुम्हें इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, दैट इज तुम्हें मैक्सिमम विड्थ ऑफ रैम्प बतानी है. ठीक है, तो तुम्हें j माइनस i मैक्सिमाइज करना है सच दैट a of i and nums of i is less than equals to nums of j. ठीक है, ओके, तो यू कैन से दैट ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है. हम सिंपली हर एक i के लिए j की वैल्यू निकाल लेंगे जो उससे बड़ी है मैक्सिमम j की वैल्यू, और हम फाइनली आंसर दे देंगे उसका. दिस इज इट, ऑब्वियसली इतना ही है कुछ. ठीक है, फाइन. तो एक इसका ब्रूट सॉल्यूशन देखते हैं. ठीक है, मैंने बोला कि मैं इस i के लिए मैक्सिमम रैम्प विड्थ निकाल रहा हूँ. अभी करंट वैल्यू ऑफ i ये मैंने फिक्स कर दी, दैट इज 0. ये इससे बड़ा है नहीं, ये इससे बड़ा है, हाँ है. फिर ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो मैक्सिमम j की वैल्यू मुझे ये मिली. ये कितनी है, रैम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 0 2, सिंपली सी. ठीक है, अब मैं i की वैल्यू कुछ और देखता हूँ. ठीक है, मैंने i की वैल्यू ये ली, दैट इज 0, और इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा 1. i की वैल्यू कितनी हो गई 1. फिर मैं आया यहाँ पे बड़ी है, हाँ है. j की वैल्यू कैन बी पॉसिबल, ये कैन बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल, कैन बी पॉसिबल. तो ऑब्वियसली मुझे रैम की विड्थ मैक्सिमाइज करनी है, तो मैं j की वैल्यू कौन सी लूँगा, दिस वन. और ये है कितनी, 0 1 2 3 4 5, ये कितनी है 5. i की वैल्यू कितनी थी 1.
j माइनस आई कितनी हो गया 4 एंड यू कैन सी जो मेरा आंसर है वो 4 है। तो फॉर नाउ तुम इतने से समझ लो कि मुझे यहाँ पे मेरा आंसर मिल गया और इस तरह मैंने कुछ अपना आंसर निकाला है। ओके फॉर नाउ ओके, इतना मुझे समझ में आ गया। अब मैं इस जो मेरा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था मैं इसकी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी चेक करता हूँ कि मैंने कितने कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व किया। मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ, मैं हर एक आई के लिए पूरी बची हुई एरे इटरेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक इंडेक्स के लिए मैं जे ढूंढ रहा हूँ। तो यू कैन से दैट दिस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एन स्क्वायर। हाउ, आई गेस मुझे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फॉर एवरी आई एम फाइंडिंग आउट जे विच विल बी हैविंग मैक्सिमम विथ रैम। ठीक है, फॉर एवरी आई एंड सिंपली आई को मैं कहाँ से कहाँ तक इटरेट करूँगा, 0 से n तक, j को भी 0 और यू कैन से 1 से n तक। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई n स्क्वायर। फाइन, अब क्या मैं इसको कुछ बेटर कॉम्प्लेक्सिटी में कैन आई ऑप्टिमाइज इट मोर, मैं इसको कुछ बेटर कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकता हूँ? ऑब्वियसली येस, आई कैन डू दिस इन बेटर कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग स्टैक्स। अब स्टैक्स को यूज़ करके कैसे करेंगे उसका एक सिंपल सा ट्रिक है, यू कैन से। ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज स्टैक्स एंड इसकी एक ट्रिक है और यू कैन से एक प्रोसेस है। अब मैं तुम्हें वो प्रोसेस बताऊंगा कैसे तुम उस ट्रिक को यूज़ करके इसकी वैल्यू लीनियर टाइम में निकाल सकते हो। ठीक है, अब वो प्रोसेस कैसे सही है, ठीक है, ये भी मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, फाइन। तो अब ये प्रोसेस एग्जैक्टली है क्या, ये देखो। पहली चीज़ क्या तुम्हें करनी है, एक स्टैक बनाना है ऑब्वियसली। अब तुमने किया क्या एग्जैक्टली, तुमने शुरू से राइट की तरफ एरे में इटरेट करना शुरू किया। ठीक है, और तुम्हें ये सारे के सारे एलिमेंट्स किस तरह डालने हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम ये सारे के सारे एलिमेंट्स उस स्टैक में डाल लो। अब मैं अपना अगर मैं स्टैक बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोला सबसे पहले मुझे मिला 6, मैंने डाल लिया। 6 से छोटा मिला मुझे 0, मैंने डाल लिया। उससे बड़ा मिला 8, मुझे नहीं डालना। 2 नहीं डालना, 1 नहीं डालना, 5 नहीं डालना। मेरे पास स्टैक में 2 एलिमेंट्स आ गए फॉर नाउ। ओके, अब मैं सिंपली क्या करूँगा, ये मेरा प्रोसेस 1 था, स्टेप 1 था, S1 स्टेप 1 था। ठीक है, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में या नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैक में सारे एलिमेंट्स डाल लिए। मेरा सेकेंड स्टेप क्या है, मुझे एरे की राइट साइड से इटरेट करना है। ठीक है, मैंने पहला एलिमेंट लिया 5। अब मैं ये चेक करूंगा कि 5 जो है ये किस सबसे छोटी वैल्यू ऑफ i के लिए मैक्सिमम विथ रैम दे सकता है या फिर रैम बन सकता है। ठीक है, तो मैंने करंट वैल्यू ऑफ j क्या ली, करंट वैल्यू ऑफ j क्या ली मैंने, ये 5, बिकॉज आई एम स्टार्टिंग इटरेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, मैंने 5 ली। अब मैं ये j के लिए चेक करूंगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू ऑफ i है जो ऑब्वियसली रैम बना सकती है। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्टैक टॉप, मैं बोलूँगा कि हाँ 0 ये रैम बना सकती है। ठीक है, तो मैं अपने आंसर में क्या दे दूंगा कि मुझे एक रैम्प मिली है जिसकी लेंथ कितनी है, सिंपली 5 से 0, करंट इंडेक्स से जहाँ पे भी मुझे 0 मिला था। ठीक है, तो मैं 0 की जगह इसका इंडेक्स भी स्टोर कर सकता हूँ, तो मुझे 0 का इंडेक्स O(1) में मिल जाएगा। तो मैं सिंपली बोल दूंगा कि हाँ मेरी ये रैम्प मुझे मिल गई है जिसकी लेंथ 4 है राइट नाउ, और मैं 0 को क्या करूँगा, स्टैक से निकाल दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास 6 आया। अब मुझे एक चीज़ पता है कि अगर ये मैं अप टू बॉटम की तरफ चल रहा हूँ, टॉप टू बॉटम की तरफ, जो ये इंडेक्सेस हैं स्टैक में या फिर एलिमेंट्स हैं वो भी इस साइड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फाइन। तो 0 के ऑब्वियसली लेफ्ट में होगा जो उसके नीचे एलिमेंट है स्टैक में। अब मैं 6 चेक करूँगा, क्या 6 जो है वो रैम बना सकता है 5 से बड़ा, नहीं, तो मैं 6 को ऐसे ही रहने दूंगा और मैं बोल दूंगा कि मैक्सिमम जो रैम बन सकती है यूजिंग j इंडेक्स वो कितनी बन सकती है, ऑफ लेंथ 4। ठीक है, फाइन। अब जब भी मुझे कोई एक नया एलिमेंट 5 के आगे, 5 तो मैंने एज अ j चेक कर लिया, 5 इज चेक नाउ, 5 को मुझे अब दोबारा चेक नहीं करना। 5 को जब भी मैंने रैम्प में यूज़ किया j की जगह में, तो मुझे मैक्सिमम विथ यहाँ पे मिली 4। अब मुझे ये चेक करना है जो 5 के पहले वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है,
क्या वो कभी रैम बना सकते हैं और वो मेरा आंसर हो सकते हैं? या तो 5 होगा या तो जो 5 के पहले एलिमेंट्स हैं वो हो सकते हैं। तो अब मुझे वो चीज़ देखनी है। तो क्या सपोज अब जब मैं 1 चेक कर रहा हूँ, ठीक है, 1 एज अ जे लिया मैंने, तो क्या मुझे अब जो स्टैक था वो मुझे वापस से पूरा उतना ही 0 से बनाना पड़ेगा, या आई कैन चेक इट फ्रॉम हेयर ऑल्सो, आई कैन चेक इट फ्रॉम 6 ऑल्सो? ये थी मेरी मेन चीज़, ठीक है। अब वाई आई हैव टू डोंट री इनिशियलाइज द स्टैक, सिंपली ये देखो कि अगर मैं इसको 0 से वापस से करता हूँ, ठीक है, इनिशियली मैं इसको 6 से कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला कि मुझे वापस से पूरा स्टैक बनाने की ज़रूरत नहीं है, एंड मैं इसी स्टैक में अपनी मैक्सिमम विथ रैम के लिए चेक कर सकता हूँ। ऐसा क्यों है ये देखने की कोशिश करो। आई एम सेइंग कि मुझे 5 के लिए एक कोई ऐसा इंडेक्स मिल चुका है जो रैम बना रहा था, मैक्सिमम इंडेक्स, ठीक है, और मैं यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स जो थे इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग 1, मैं इनके बीच के जो सारे एलिमेंट्स थे वो स्टैक से हटा चुका हूँ, ठीक है, वो स्टैक से हटा चुका हूँ इतनी लेंथ के। ध्यान से सुनना जो मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। मुझे 5 के लिए एक मैक्सिमम विथ जो रैम बन रही थी वो मेरी यहाँ पे बन रही थी, तो मैंने इतने यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक के एलिमेंट्स जो भी थे वो मैंने स्टैक से, ये रहा मेरा स्टैक, उससे हटा दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे स्टैक में वो एलिमेंट्स नहीं है। तो अगर 1 जो है, ठीक है, वो क्या इनके साथ या इसके साथ या इसके साथ किसी के साथ भी अगर रैम बना रहा होता, ठीक है, किसी के साथ भी, सपोज 1 जो है वो 2 के साथ रैम बना रहा है, वो 8 के साथ रैम बना रहा है, ठीक है, तो क्या जो वो रैम है वो रैम कभी भी मेरी आंसर होगी? जस्ट इमेजिन अबाउट दिस, जस्ट थिंक अबाउट दिस, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी 5 से लेके 0 तक की जो एक रैम थी वो मिल चुकी है, ठीक है, इतनी। तो क्या कोई भी उससे छोटी रैम जो तुम इनके बीच के एलिमेंट से बनाने वाले हो वो यूजफुल है मेरे लिए? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम विथ रैम, वेदर इस साइड से कोई भी छोटी रैम, ठीक है, वो कोई भी यूजफुल है? ऑब्वियसली नॉट। दैट्स वाई मुझे जो स्टैक है अपना वो री इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है, एंड आई कैन वर्क ऑन दिस स्टैक ऑल्सो, ओके। दैट्स वाई ये था मेन रीजन कैसे हम इस सॉल्यूशन को लीनियर टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सपोज मैंने 1 के लिए बोला, मैंने 1 को जे बना लिया करेंटली, ठीक है, और 1 के लिए मुझे 0 तक कोई भी एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है। आई विल सिंपली चेक 1 के लिए 6 से, ठीक है, 6 और उसके आगे कोई एलिमेंट होता उसके लिए, फिर उसके आगे कोई एलिमेंट होता उसके लिए, एंड मैं बोलता कि जो मेरे एलिमेंट्स हैं यहाँ तक के वो सारे के सारे निकल चुके हैं, ठीक है, फाइन। अब वो सारे के सारे एलिमेंट्स, सपोज यहाँ तक के एलिमेंट्स मैंने निकाल दिए पूरे के पूरे 1 के लिए, ठीक है। अब वो सारे एलिमेंट्स अगर निकल गए तो सपोज 2 के लिए क्या मुझे वो एलिमेंट्स चेक करने की ज़रूरत होगी? सेम लॉजिक अगेन है, अगर ये जो मैक्सिमम लेंथ है अपडेट हुई है तो इसके बीच के कोई भी एलिमेंट्स तुम्हें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो रैम कभी भी तुम्हारे आंसर को कंक्लूड नहीं करेगी, ऑब्वियस सी चीज़, ठीक है। और अगर ये मैक्सिमम लेंथ नहीं है, सपोज जो मेरी मैक्सिमम लेंथ मुझे मिली थी वो 4 थी ऑलरेडी, और ये 1 से मैक्सिमम लेंथ नहीं है, ठीक है, 4 से बड़ी नहीं है, तो ऑब्वियसली एग्जैक्टली होगा क्या कि तुम्हें सेम 4 के बराबर लेंथ ही मिल सकती है एग्जैक्टली। तो वो 4, आई एम सेइंग कि मेरा जो आंसर है वो मेरे पास 4 ऑलरेडी है, ठीक है। तो मुझे अगर यहाँ से भी मुझे कोई 2 के लिए भी 4 लेंथ की मिल जाए तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट गोइंग टू कंक्लूड एनीथिंग इन माय आंसर, दैट इज मैक्सिमम विथ ऑफ रैम, ओके। दैट्स वाई मैं कभी भी स्टैक को अपने री इनिशियलाइज नहीं करूँगा और जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं उनसे काम चला सकता हूँ। सो दिस वॉज द मेन मोटिव ऑफ दिस होल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब सिंपली देखो स्टैक में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? n, ओके। एंड मुझे हर बार जब मैं हर बार j को कंसीडर कर रहा हूँ, j को ये बनाया, j को ये बनाया, देन ये, ठीक है, तो O ऑफ n इटरेशन मेरा इसमें होगा, ठीक। फिर एग्जैक्टली होगा क्या, हर एक j के लिए सपोज मैं कुछ एलिमेंट्स निकालूंगा, कुछ एलिमेंट्स, और वो टोटल नंबर ऑफ जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? n, ठीक है। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो तुम्हारी लीनियर कांस्टेंट होगी,
लीनियर प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बेटर देन O ऑफ n स्क्वायर है। दैट्स वाई वी यूज दिस स्टैक सॉल्यूशन in ramp with maximum ramp with problem. Okay, now I am showing you the code for this question and I hope तुम्हें वहाँ से simply और ज़्यादा clear हो जाएगा। तो simply see here मैंने एक stack बनाया and now in this loop I pushed all the elements in decreasing order, ठीक है, fine। अब मैं बोलूँ अगर कि मैं elements की जगह that is 6081 उनके indexes डाल लूँ यहाँ पे, that is 6 का इंडेक्स 0 डाल दिया मैंने, 0 का इंडेक्स मैंने 1 डाल दिया, फिर 8 का इंडेक्स मुझे नहीं डाला। तो इससे होगा क्या एग्जैक्टली, जब मैं जे में यहाँ पे इटरेट कर रहा हूँ जे से, ठीक है, तो मुझे जो भी एस टॉप में मिलेगा वो मुझे आई की वैल्यू मिल जाएगी। सो यूजिंग दैट आई कैन सिंपली अपडेट माई आंसर एज जे माइनस आई और जे माइनस एस डॉट टॉप। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने स्टैक में जब भी नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स डाल दिए, ठीक है, उनके इंडेक्स, सॉरी। फिर मैंने एक आंसर बना लिया जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने इटरेट करना शुरू किया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। व्हेनेवर मैंने चेक किया मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है एंड जो मेरा टॉप का एलिमेंट था, मेरे पास एस डॉट टॉप में क्या है, स्टैक टॉप में कोई एक इंडेक्स है। मुझे उस इंडेक्स सिंपली चेक करना है कि उस इंडेक्स में जो एलिमेंट था क्या वो मेरे करंट एलिमेंट दैट इज जो मैंने जे सपोज किया है उससे छोटा है या इक्वल है। अगर है देन आई कैन सिंपली कंसीडर दिस जे माइनस आई एज अ रैम, ओके, एंड आई विल अपडेट माई आंसर एज मैक्स ऑफ आंसर एंड आई माइनस एस डॉट टॉप। एस डॉट टॉप, इन एस डॉट टॉप आई एम हैविंग द इंडेक्स ऑफ दैट एलिमेंट, ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। और मैं सिंपली उस एलिमेंट को पॉप कर दूंगा। तो एग्जैक्टली ये जो लूप है ये मैक्सिमम n टाइम्स ही चलेगा, मैक्सिमम n टाइम्स, ठीक है, हर बार n टाइम्स नहीं चलेगा, मैक्सिमम n टाइम्स चलेगा। तो ये जो लूप है ये कांस्टेंट टाइम में चलेगा और जो बाहर का लूप है वो टोटल n टाइम्स चलेगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। At the end I will simply return answer. If you have any doubt in this question you can simply ask me in comment section. I will explain you in brief again. If you haven't checked Newton School Pay After Placement program and Launchpad initiative, just go and check them. And if you have any doubt regarding these two programs you can ask me in comments. And again, if you haven't subscribed this YouTube channel, just go and subscribe this YouTube channel where we are uploading our videos every day and updating these playlists regularly so that you can get free content as regular as possible. Thank you guys for watching.